yesterday of attack in handball. So once again, I welcome you all in today's session. That is again very important. Basic collective play, defense in handball. So why defense is important? Because without defending the opponent, you are not able to win the trophy or win the match. So first of all, if you want to win the match, you must focus on the defense part. Why? Suppose if the team A is scoring 45 goals or 50 goals, but not able to defend those 45 or 50 goals, then what is the result? The result is always remains the same, that is the losing. So from my point of view, defense is much important than the attack. Whether you are scoring the goal, a 5 goal or 10 goal or 15 goals, but how you defend okay. So now we are just moving further. So what is the basically basic collective play in handball? As we just talk about the defense. Okay, just a little bit. ओजस तुम जब भी वो करते हो तुम्हारा यहाँ पे एनानोटेट हो जाता है तुम्हारे ओजस 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 अपने ड्रैग मत करो मोबाइल ड्रैग मत करो तुम्हारा नाम आता है बार बार तुम ड्रैग करते हो ठीक है तुम स्क्रीनशॉट खींचते हो स्क्रीनशॉट लेते हो ना तो उससे वो ड्रैग हो जाता है तो स्क्रीन पे ठीक है तो जो भी ड्रैग करता है उसका स्क्रीन पे नाम आता है ठीक है तो तुम्हें अगर वो चाहिए फोटो मैं दे दूंगा बाद में दे दूंगा ठीक है तो बेसिकली वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक कलेक्टिव प्ले तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब भी आप कितने भी स्कोर करें आप 50 स्कोर्स भी करते हैं 50 गोल भी करते हैं और अगर 50 गोल को सेव नहीं कर पाते आपने अगर 20 गोल्स भी किए हैं इफ यू जस्ट स्कोर 19 गोल्स एंड यू आर एबल टू डिफेंड दोस 19 गोल्स देन द रिजल्ट विल बी इन योर फेवर रिजल्ट आपके फेवर में आएगा isn't it so here the story starts with this so first of all whenever now what is defense if we just talk about the defense whenever the team loses the ball possession at the same time that team basically become a defensive team and the member of the defensive team is called a defender so when the ball possession loses at the same time what happens the defenders just try to intercept the ball the first duty starts so in broader aspect there is two phases in defense transition to defense and the positional defense so when the team is returning back to their original position to their goal post to their goal area zone to taking a basic position that is we call the positional defense but between that what happened after losing the ball possession in the opponent courts and then reaching to their original position there is a time and that time is called basically a transition to the defense and how quickly they transit to attack to their basic position their positional defense that matters a lot ये सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे तो डिफेंस में बेसिकली दो तरीके से अगर हम देखते हैं तो ब्रॉडर एस्पेक्ट में होते हैं दो फेजेस होते हैं तो एक पहला फेज होता है ट्रांजिशन टू डिफेंस और दूसरा जो फेज होता है पोजिशनल डिफेंस
अब जो ट्रांजिशनल जो फेज होता है उसमें क्या होता है कि जैसी बॉल आप टीम के हाथ से छूटती है, बॉल पोजीशन लूज करती है, उसी समय वो टीम डिफेंसिव टीम बन जाती है और वो कोशिश करते हैं अपनी बेसिक पोजीशन पर आने के लिए जल्दी से जल्दी। तो इसको बोलते हैं क्विक क्विक रिट्रीट, क्विक कम बैक, वापस आने अपनी पोजीशन पर लेने के लिए। अब बात क्या होती है, जब भी यहां पर होता है ट्रांजिशन टू डिफेंस, तो thing of the players of defending team, quick passing between the opponent team, that is attacking team, so that opponent team is not able to score the goal by using the fast breaks. The first thing, सबसे पहला फर्स्ट फास्ट ब्रेक रोकने की कोशिश होनी चाहिए प्लेयर्स की। इसको अब उसमें होना क्या चाहिए, ट्राई टू, अब उसमें क्या है, वो मैक्सिमम क्या है, वो उनके पासेस रोकेंगे, ब्लॉकिंग करेंगे अपोनेंट को। उनका जो अगर क्विक पासेस है उनको कैसे ओपन स्पेस में जाने से रोक सकते हैं, तो ये क्विक रिट्रीट में होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, most of the defenders just try to defend the player, they try to catch the player, they try to hold the player, and without क्या फैक्टर होता है कि क्या वो इंटरसेप्ट करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सामने से प्लेयर्स के most of the time what happened, the ball just goes like this, but they are focusing on the player only. This is my man and I have to just mark that player, I have to mark this player, even though that player easily can intercept the ball or maybe catch the ball or maybe deflect the ball. तीन ऑप्शंस होते हैं उसके पास बेसिकली, या तो वो डिफ्लेक्ट कर सकता है इफ आउट ऑफ रीच, अगर आउट ऑफ रीच है, या वो कैच कर सकता है, कैच और मे बी इंटरसेप्ट भी कर सकते हो। इंटरसेप्शन में ये सारी चीजें आ जाती हैं, डिफ्लेक्शन है, कैचिंग है। तो अब उसमें होता क्या है, मैक्सिमम प्लेयर का फोकस होता है सिर्फ मार्किंग टू द प्लेयर, नॉट द बॉल। तो ये वहां पर एक प्रॉब्लम होती है। तो ये हमें अर्ली स्टेजेस में बच्चों को ट्रेन करना चाहिए कि आपका जो फर्स्ट फोकस इज ऑलवेज ऑन द इंटरसेप्शन ऑफ द बॉल, बॉल पर आपका होना चाहिए। जब भी आप डिफेंस के लिए कर रहे हैं तो आपका फोकस इज ऑलवेज ऑन द बॉल। हमारा कल भी बात हो रहा था, ड्रिबलिंग कर रहा है प्लेयर, आपके सामने से ड्रिबल कर रहा है, बट यू आर नॉट ट्राइंग टू इंटरसेप्ट द बॉल। आप मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं यहीं पर एक पॉइंट आउट और करता हूं, आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, आपने अपना देखिएगा, मोस्ट ऑफ द, जब भी जो विंगर के जो डिफेंडर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो विंग, आप देखिए कितने स्टैटिक हो जाते हैं। स्टैटिक, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक। अब स्टैटिक और डायनामिक में होता क्या है, स्टैटिक मींस अपनी पोजीशन पर रिटेन बने रहना कि भाई मेरी ये जगह है, मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा, मेरी पोजीशन पर कोई आएगा तब मैं देखूंगा कि क्या करना है एज ए डिफेंडर। तो दिस इज कॉल्ड अ स्टैटिक। अब स्टैटिक पोजीशन की बात हो रही है यहाँ पर। अब पर आपका डायनेमिज्म कहाँ गया? डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक इज दैट मींस यू आर मूविंग, मूवमेंट है। व्हेन यू आर मूविंग, व्हेन आप मूव कर रहे हैं तो आप उस कंडीशन में कैसे मूव करेंगे? मूवमेंट होना चाहिए, डायनेमिक नेचर होना चाहिए आपका डिफेंस का। तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ और आप अब गौर करके देखिएगा कि आप लोगों ने कितनी बार देखा होगा 4 नंबर का जो अटैकिंग प्लेयर होता है लेफ्ट बैक, वो विंगर के मैक्सिमम चेहरे के सामने से पास फेंक देता है मैक्सिमम टाइम, या उसके सामने से बाउंस पास फेंक देता है। अगर आप ये मानते हैं कि नहीं मानते, यू जस्ट रिएक्ट। आप हम सब या कुछ करके आप बता सकते हैं ये सही है कि नहीं, आप रिएक्ट कर सकते हैं, आपके पास वो रिएक्शन बटन होता है। मैक्सिमम टाइम प्लेयर्स क्या करते हैं,
वो बॉल पास करते हैं और जो विंगर का जो डिफेंडर होता है बस वो उसको देखता रहता है। और किसको देख रहा होता है? ही इज जस्ट वॉचिंग टू हिज अपोनेंट। वो उसको बॉल ऐसे जा रहा है, बॉल इज गोइंग लाइक दिस, और वो अपने विंगर को बस फोकस कर रहा है, फोकसिंग ऑन द विंगर ओनली, जो अपना अपोनेंट है होता है डिफेंडर का। नाउ द डिफेंडर स्टार्ट डूइंग देयर एक्शन। अब डिफेंडर उसको होल्ड करेगा, पुश करेगा, वो 7 मीटर ले लेगा, 9। यहाँ क्यों है? वाई यू आर ऑल ट्राई टू डू ऑल थिंग? ये क्यों कर रहे हैं? इंटरसेप्शन कर रहे हैं, अवॉइड पासिंग, ओपन स्पेस देने से कोशिश कर रहे हैं, ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट द अपोनेंट, द ओपन स्पेसेस, क्लियर स्पेसेस टू द अपोनेंट। डिफेंडर्स को नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? जस्ट टू रीगेन द बॉल पोजीशन। हमें क्या चाहिए? बॉल चाहिए ना, बेसिकली बॉल के लिए कर रहे हैं सारा कुछ। तो क्यों नहीं फर्स्ट इंस्टांस इन द ट्रांजिशन टू द डिफेंस उस कंडीशन में कर सकते हैं, एंड जस्ट try to compel the opponent so that they can do some error, mistakes, passing mistakes. अब एरर करेंगे तो व्हाट हैपन अगेन, द यू कैन रीगेन द बॉल पोजीशन, आपको बॉल पोजीशन मिलने का चांसेस होगा। so this is comes under the temporary defense, that we call the temporary defense. Then afterwards we move towards the when the team is able to secure the first instance, like they are avoiding the quick fast throw off, they are even blocking the fast breaks of the opponent. Then the team just try to now they have to reach to their basic position. Now the team just reaches to their basic position. वहां से क्या होता है? Then the positional defensive starts. अब बेसिकली द स्टोरी कहां से, अगर हम फिर से इसको एक बार समराइज कर लेते हैं लिटिल बिट, व्हेन द बॉल losing the ball possession, at the same time that team become a defensive team. Now the temporary defense is start, that is called the transition to defense, and tries to regain the ball possession. If it is so, then the team again goes for the attack. If not able to do so, then they try to stop the quick throw offs and fast breaks. Then afterwards the team just tried to reach to their basic position, that is called a positional defense. ये clear हो गया? This is clear to all? Yes sir, yes sir. Yes sir. Now अब यहां पर होता है बेसिकली ट्रांजिशन टू डिफेंस में हम किन किन बातों के लिए इंपॉर्टेंट देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीजें होती हैं अगर आपको देखना है तो बेसिकली आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, व्हाट इज ट्रांजिशन टू डिफेंस। इट इज आल्सो कॉल्ड द क्विक रिट्रीट। क्विक रिट्रीट मींस जल्दी से वापस आना, क्विक बैक, वापस आना अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, दैट इज कॉल्ड अ क्विक रिट्रीट। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, क्या क्या चीजें थी हमने अभी बात कर रहे थे। बेसिकली क्या होता है? एक्सर्टिंग इमीडिएट प्रेशर ऑन द बॉल बाय द क्लोजेस्ट डिफेंडर। जो भी पास में खड़ा है उसकी ड्यूटी होती है टू ट्राई टू प्रेशराइज द अपोनेंट हैविंग द बॉल एंड ट्राई टू रीगेन द बॉल पोजीशन। एंड व्हाट हैपन मोस्ट ऑफ द टाइम, ये मेरा प्लेयर नहीं है, ये ज्यादातर ही हो जाता है प्लेयर्स में, वहां पर होता है ये तेरा प्लेयर है, तू पकड़, मेरा प्लेयर वो है, मैं जा रहा वहां। जबकि सिचुएशन क्या है? यू आर द क्लोजेस्ट,
भाई आप उसके नजदीक है ना, तो उसको आपको पकड़ना चाहिए, जो डिफेंडर उसके क्लोज है, कि वो मेरा तो वो उधर चला गया, मैं तो उधर जा रहा हूँ उसको छोड़ के। अब प्रॉब्लम यहाँ से चालू होती है, ये प्लेयर भाग रहा को क्या करना है, टू प्रेशराइज द बॉल। तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे प्लेयर्स ये काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे, सबकी भाई हमारा प्लेयर वो है या मेरा जोन वो है, मैं तो अभी इसको नहीं छोड़ के, वो सीधे वहां भागने लगते हैं। तो पहला इमीडिएट क्या है, टू प्रेशराइज द पर्टिकुलर प्लेयर हैविंग द बॉल। देन टीम पुशिंग बैक क्विकली टू प्रिवेंट पासिंग। अब जैसे वो वापस आ रही है, अब क्या करते हैं, दे आर क्रिएटिंग अ ओपन स्पेस। यस्टरडे वी आर टॉकिंग अबाउट द हाउ टू क्रिएट अ ओपन स्पेस by getting a different by taking the different position by the attackers. So just in a flip manner, in opposite manner, just defenders try to restrict them so that they can't create an open space and they are not able to pass the ball to their teammates. वो अपने टीममेट्स को पास ना दे पाए, ये अब ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है डिफेंडर्स की, कि उनको ओपन स्पेस ना मिले। तो वो उसको इसके लिए क्या करते हैं, दे आर जस्ट स्टार्ट डूइंग अ क्लोज मार्किंग। वो क्लोज मार्किंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड, उनको ऑटोमेटिक ओपन स्पेस नहीं मिलेगी। फिर क्या है, देन ट्राई टू अटेम्प्ट टू स्टीलिंग द बॉल, दैट मीन्स टू ट्राई टू इंटरसेप्ट द बॉल, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट from the beginning of this session. Just try to, first of all, the duty of the defender is to intercept the ball, not the player. And but most of the players just thought, just try, जब पकड़ उसको पकड़ लेना, जैसे तुम्हारे पास है पकड़ लेना, जस्ट पकड़ लो पकड़ लो। अब होता क्या है, मैक्सिमम टाइम अगर वो जो प्लेयर है वो डायनेमिक नेचर का प्लेयर बन सकता था, अब होता है कि बॉल भी उसके सामने आती है, दे नेवर ट्राई टू इंटरसेप्ट द बॉल। पीपी के पास बॉल जाती है पर वो पीपी को पहले पकड़ लेता है, पर दे नेवर ट्राई टू इंटरसेप्ट द बॉल। विंगर के पास बॉल जा रही होती है, वो बस सिंपल सा एक उसको अपना एक स्टेप लेके उसे इंटरसेप्ट करना है बॉल को, एक्सटेंड बाय एक्सटेंशन देयर आर्म, वो पूरा फोकस प्लेयर पर रहता है। तो जस्ट ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू अटेम्प्ट द बॉल। अब यहां पर क्या होता है, देन नेक्स्ट हम आते हैं, अब जब ट्रांजिशन टू डिफेंस चल रहा है, तो नेक्स्ट एस्पेक्ट इज स्लो डाउन द फास्ट ब्रेक। तो ये सब जब सारे काम आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली व्हाट हैपन, उनका जो फास्ट ब्रेक है वो स्लो डाउन हो जाएगा, उनकी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे ही उनका फास्ट ब्रेक इज स्टॉप, व्हेन द फास्ट ब्रेक इज स्टॉप, व्हाट हैपन, a temporary difference is formed until it possible to organize the intended system। अब इंटेंडेड सिस्टम क्या हो जाता है, मतलब जब तक हमें टेम्परेरी डिफेंस में आ जाना है, जस्ट ट्राई टू मेक अ टेम्परेरी डिफेंस, टेम्परेरी वॉल। बिफोर गेटिंग द डिफेंसिव सिस्टम, इंटेंडेड सिस्टम। अब इंटेंडेड सिस्टम मीन लाइक टीम इज प्लेइंग विद द 6-0, 5-1, 4-2, 3-3, maybe combined defense or whatever type of defensive system is applied by the that particular team। अब जो भी वो डिफेंस में वो उनकी जो पोजीशन है, उस पोजीशन में वो आने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल just try to slow down the fast break, and then afterwards when the opponent stops the fast break, just try to make a temporary defense formation, and then afterwards just try to take the basic position according to the intended system। जो भी आपका सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप पोजीशन ले सकते हैं, 6-0, 5-1, 4-2, कोई भी जो भी आपको सिस्टम में जाना है उसमें जा सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, दीज थिंग्स डन वेरी क्विकली, एज क्विक एज पॉसिबल। अब इसमें होना क्या चाहिए, जितना फास्ट आप करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। अब होता क्या, मैक्सिमम टाइम प्लेयर्स क्या सोचते हैं
भाई स्कोर कर लिया है या गोल कर लिया है, नाउ रिटर्न बैक एंड जस्ट गोइंग स्लोली जॉगिंग टुवर्ड्स द देयर ओन पोजीशन एंड देन जस्ट ट्राई टू टेक द रेस्ट। चलो अब यहाँ पर थोड़ी सी ब्रीदिंग ली जाए, लॉन्ग ब्रीदिंग, एंड स्टार्ट टेकिंग द रेस्ट। उससे बात किया, उधर देखा इधर देखा, एंड इन बिटवीन व्हाट हैपेंड, द पास कम्स टू द दैट पर्टिकुलर प्लेयर एंड प्लेयर गोज फॉर द शूटिंग। तो ये बहुत मैक्सिमम टाइम होता है। तो उसमें क्या है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए। और ये जो काम है, ये जो सारे जो हमने 5 पॉइंट्स पर बात करी है, ये इस पर फोकस तभी किया जा सकता है, ये तब हो सकता है जब ये सारे एडजस्टमेंट बहुत क्विकली किए जाएं। व्हेन द टीम एडजस्ट क्विकली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, देन दिस थिंग इज हैपन। नहीं तो नहीं हो सकता। अगर एडजस्टमेंट क्विक नहीं है, ये सिचुएशंस को नहीं कर रहे, ये सारे फॉलो नहीं कर रहे, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ द ट्रांजिशन टू द डिफेंस। नाउ बेसिकली अभी जो नए ट्रेंड क्या चल रहे हैं, व्हाट आर द न्यू ट्रेंड इन द ट्रांजिशन फेज। अब अगर इसमें हम बात करेंगे तो व्हाट आर द फेजेस, व्हाट आर द ट्रांजिशन फेज में जो क्विक रिट्रीट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। फर्स्ट इज फास्ट ट्रांजिशन टू डिफेंस। पहले क्या था कि नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो 2005, 4, 5, 3 इसमें देखिए इंजॉयमेंट ऑफ द गोल इज मोर, खूब इंजॉयमेंट होता था। उसके बाद से धीरे धीरे क्या हुआ, अभी आप देखेंगे तो ये अब टीम इंजॉयमेंट कम करती है, फटाक से डिफेंस विद द फास्ट थ्रो ऑफ। तो वो अवॉइड करने के लिए, क्विक फास्ट ब्रेक अवॉइड करने के लिए, दैट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फास्ट ट्रांजिशन टू डिफेंस। यानी अपनी आप को लाइक अटैक से डिफेंस में क्विकली वापस आना है। देन फुल कोर्ट प्रेशर इज इंपॉर्टेंट। अभी जितनी भी बात हम कर रहे थे वो सारी बातें उसी पर हो रही थी। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग, सब कुछ उसी में हो रहा था। अच्छा, हो क्या रहा था, सारे जो चीजें हो रही थी वो क्या थी, सब फुल कोर्ट प्रेशर की बात हो रही थी। बट जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन, द मैक्सिमम टाइम टीम जस्ट फोकसिंग टू डिफेंड द अपोनेंट टीम ओनली इन देयर पर्टिकुलर जोन। वो अपने जोन में ही डिफेंस करने की कोशिश करते हैं, फुल कोर्ट में नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ज्यादातर टीम्स को आपको देखने को मिलेगा कि दे आर फोकसिंग ऑन देयर जोन ओनली, यानी अपने जब हमारे हाफ में आएंगे तब हम उनको डिफेंस कर लेंगे, तब देखेंगे। बट दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड। ट्राई टू प्रेशराइज द टीम ऑन द फुल कोर्ट, जो हम लोगों ने पहले बात करी थी उस पर। रेडीनेस टू रिस्क। अब क्या होता है, रेडीनेस टू रिस्क मीन्स क्या है, when the player just try to intercept the ball, so there must be a risk also. What happen if you try to intercept the ball, and if you are not able to intercept the ball, if the defender is not able to defend the intercept the ball, what happen, attacker easily get the ball and then the chances of the fast break is more, क्योंकि आप वन लेस हो गए ना, यू बिकम अ वन लेस। तो एक ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो बट इसके लिए क्या है, यू मस्ट बी रेडी फॉर द रिस्क। और मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, प्लेयर्स जस्ट अवॉइड दिस ड्यू टू, भाई पूछो कि भाई तुम्हारे सामने से बॉल जा रहा था, भाई तुमने क्यों नहीं इंटरसेप्ट किया। सर मैं पीछे पकड़ लूंगा, आई जस्ट कैच हिम देयर, मैं वहां पकड़ूंगा, वहां पकड़ूंगा। तो वो क्या होता है, क्योंकि वो उस समय क्या होता है, वो तैयार नहीं होता टू टेक द रिस्क, या उसके पास कैपेबिलिटी या एबिलिटीज पर वो अपने ऊपर उस समय क्या कर रहा होता है, ही इज डाउटिंग ऑन हिज और हर एबिलिटी, तब ये प्रॉब्लम आती है। तो रेडीनेस टू द रिस्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन टैक्टिकल रिदम चेंजेस। तो अब कल जब हम लोग बात कर रहे थे ओपन प्ले और सेट प्ले का जो डिफरेंस था, तो यही चीज है कि जब रिदम चेंज हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू द रिदम आवर टीम इज रेडी टू दैट। The team is playing fast, team is playing slow, team is using fast throw, team is using quick fast breaks, one versus two versus one situation they are playing। वो सिचुएशन में जो डिफरेंट टैक्टिकल उसके रिदम के अकॉर्डिंग टीम हमारी रेडी है क्या, हमारे प्लेयर्स आर रेडी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी दैट मीन्स द डिफेंस मस्ट बी वर्सेटाइल एंड नहीं हम अपने जोन पे जाएंगे, जोन पे जाके हम डिफेंस करेंगे,
कुछ भी उसमें नया लाने की कोशिश नहीं हो रही है. दैट्स व्हाई दिस थिंग इज हैपन. नाउ वेरिएबल डिफेंस अगेंस्ट फास्ट ब्रेक. तो अब जो एक हमारे पास ऑप्शन है, जैसे कि सिर्फ हम फास्ट ब्रेक कैसे रोक सकते हैं, तो वी हैविंग अ वेरिएबल डिफेंस सिचुएशन so that it is unpredictable for the opponent, so they are not able to perform the fast break easily. अगर हम एक जैसा डिफेंसिव बिहेवियर करते रहेंगे तो वो क्या होगा, अपोनेंट उसको गैदर करेगा इंफॉर्मेशन एंड देन आफ्टरवर्ड्स इट अप्लाइज ऑन टू यू, आपके ऊपर अप्लाई होगा. बट व्हाट इफ यू आर जस्ट चेंजिंग योर डिफेंसिव बिहेवियर, if you having a lot of variation in your defense, so it basically delays the fast break of the opponent and they are not able to score the goal by using the means of the fast break. Then afterwards, the next point, just basically in the high tempo game, nowadays in a high tempo game, just try to limit the substitution of the specialist defender. But abhi kya ho raha hai, most of the time team trains like that only. Team now train their teams in this manner. Rules permit this. Rule basically permit karta hai, तो करना चाहिए, no issues. But when the game tempo is very high, at that time just try to limit the substitution. उस समय limitation रखना चाहिए, उस समय avoid करना चाहिए, continuous substitution avoid करना चाहिए. क्यों? क्योंकि उस समय maybe team is trying for the fast break और maximum time क्या होता है, player just स्कोर करता है. बेसिकली जब सेंटर बैक, लेफ्ट बैक और राइट बैक को थोड़ा अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है टीम्स में, उनको थोड़ा ज्यादा क्योंकि वो अच्छे माने जाते हैं, तो उनको टीम सोचती है थोड़ा रेस्ट दिया जाए इन बिटवीन. तो उसमें वो क्या है, वो क्विक अपना काम करके भाई वापस आ रहे होते हैं. इन बिटवीन द अपोनेंट टीम जस्ट गोज फॉर द फास्ट ब्रेक. तो एट दैट टाइम हमें लिमिटेशंस रखनी चाहिए. जस्ट हम इसके बारे में भी और बात करेंगे कि ऐसा क्या करें जिससे ये चीज हम कर सकते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में. Now, after transition to the defense, when the teams they take their basic position and they properly arrange to their basic position, and the defense is organized according to their system, then that is called the positional defense. अगर हम इसमें बेसिकली बात करें, जब टीम अपनी पोजीशन ले लेती है, बेसिक पोजीशन आ जाती है, तब उसको हम पोजीशनल डिफेंस बोलते हैं. यानी अपनी पोजीशन में आकर वो लोग खड़े हो गए जो उनकी पोजीशन थी. अब उसमें क्या होता है, टीम्स आर प्लेइंग इन डिफरेंट सिस्टम्स लाइक 3-3, 4-2, 3-2-1. These are some example of basically a deep defensive system. Deep, ये डीप होते हैं, इनको बोला जाता है बेसिकली गहरे, काफी बड़े लेवल पर होते हैं. मैंने कल भी आपको दिखाया था. तो ये देखेंगे तो जैसे ये आपका देखें 3-2-1 का सिचुएशन बनता है. ये देखिए इनकी जो डेप्थ होती है बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनको डीप डिफेंसिव सिस्टम भी बोला जाता है लाइक दिस. और शैलो बेसिकली वो सिस्टम्स होते हैं जैसे लाइक 6-0 और 5-1. अब शैलो क्या होता है, बेसिकली वो एक कम गहरा होता है, उसमें गहराई नहीं होती है. वो बेसिकली अगर आप यहाँ देखेंगे तो 6 मीटर लाइन पर दे आर डूइंग देयर ड्यूटी. यहाँ पर जो प्लेयर्स होते हैं दे आर डूइंग देयर ड्यूटी. तो ये शैलो, ये बेसिकली यहाँ पर इस रीजन में किया जाता है, तो ये शैलो होता है. And this is a basically a deep defensive system. So team तो अगर वो सिस्टम में रिटर्न बैक हो जाती है and they are able to take their basic position, then that defense is called the positional defense. And in the positional defense,
that am I audible? आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. You are audible, sir. Okay. Yes, sir, you are audible. Okay. So what happened in the particular positional defense team just adopting a different system, अलग अलग क्या करती हैं, सिस्टम चूज कर लेती हैं. वो जो सिस्टम अब बेसिकली कुछ लोग जानते हैं, मैं थोड़ा उनको बता देता हूं जो लोग नहीं. अब सिस्टम बेसिकली क्या होता है, अटैकिंग सिस्टम्स होते हैं और डिफेंसिव सिस्टम होते हैं. उनके कुछ बेसिकली कुछ ड्यूटीज होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसमें वो लोग करते हैं जिससे कि वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. आप क्या कीजिएगा, इफ यू जस्ट गिव द बॉल, छोटे बच्चों को स्कूल में एक बॉल दे दीजिएगा और उनसे बोलिएगा आप हैंडबॉल खेलिए जाके इन द कोर्ट. वो क्या करेंगे, सारे जितने प्लेयर्स होंगे 14 जो प्लेयर्स वहां खेल रहे होंगे, मे बी जितने भी उस क्लास में खेल रहे होंगे, वो सारे क्या करेंगे, वो वहीं पर होंगे जहां पर बॉल होगी. उनको ना अपनी बेसिक पोजीशन पता होगी, ना बेसिक अटैकिंग पोजीशन पता होगी, ना बेसिक डिफेंसिव पोजीशन पता होगी. वो सब के सब एक साथ एक जगह जहां बॉल होगी वहीं आ जाएंगे. इवन गोलकीपर भी भाग के आ जाएगा बाहर कि भाई जहां बॉल है वहां पर खेलना है. तो ये क्या हो रहा है, ये जो गेम चल रहा है बेसिकली ये विदाउट सिस्टम में चलता है. तो इसीलिए कुछ सिस्टम्स होते हैं. इन द सिस्टम बेसिकली क्या होता है, तभी वो सिस्टम कंप्लीट बनता है व्हेन द प्लेयर हैविंग द बेसिक पोजीशन, हैविंग द बेसिक मूवमेंट, having the main defensive duties and having the supporting nature to their team players. तभी जाके हम उसे कंप्लीट सिस्टम बोल सकते हैं. उससे पहले उसे सिस्टम नहीं बोला जाएगा. अगर प्लेयर्स को अपनी बेसिक पोजीशंस नहीं पता, बेसिक मूवमेंट्स नहीं पता, प्लेयर डोंट नो देयर मेन ड्यूटीज, उनको अपनी ड्यूटीज पता नहीं, और प्लेयर्स को ये नहीं पता कि व्हेन टू सपोर्ट आवर टीममेट, तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि ये सारी चीजें नहीं. और ये 6-0 में, 5-1 में, 3-3 में ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं. इसीलिए दे वी कॉल द सिस्टम, दैट्स व्हाई वी कॉल सिस्टम. तो इसीलिए इसे सिस्टम बोला जाता है. तो ये मैंने उनके लिए बताया था कि क्योंकि इसमें जो प्लेयर की एग्जैक्ट पोजीशन होती है, प्लेयर अपनी एक डेजिग्नेटेड पोजीशन पे ही खेलते हैं. ये नहीं कि ये वाला प्लेयर कभी यहाँ भाग के आ जाएगा, ये वाला प्लेयर यहाँ आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा. अब जब ये होता है तो अभी एक रिसेंट ट्रेंड में एक नया हुआ है कि अभी जो मैक्सिमम डिफेंडर्स ट्राई टू प्ले इन ऑफेंसिव मोड. Why they are playing in the offensive mode? Whether they are trying to harm the player? No, they just try to regain the ball possession. अगर वो डिफेंसिव मोड में खेलेंगे तो वो आराम से क्या होता है, जो अपोनेंट टीम होती है दे क्रिएट अ लॉट ऑफ चांस फॉर स्कोरिंग चांसेस क्रिएट कर लेती है. तो इसलिए अभी डिफेंसिव टीम्स आर जस्ट ट्राइंग टू प्ले अ ऑफेंसिव मोड, just try to regain the ball, not to harm the opponent. ये अपने प्लेयर्स को जरूर सिखाना चाहिए. if you are able to do so to winning the match, then it's very good. आप जीत सकते हो तो बहुत अच्छी बात है by using only a fair play. अगर फेयर प्ले, पर ये करना गलत होता है. बहुत सारे प्लेयर्स ये बहुत करते हैं. मैंने ये बहुत देखा कि एक अच्छे प्लेयर्स को जानबूझ के इंटेंशनली हिट किया जाता है. एंड दीज थिंग्स टीचेस बाय द, जो सही नहीं है, वो उससे लाइफ और इवन कैरियर पर असर पड़ता है. तो ये जो डिफेंडर्स कुछ मौकों पर वो क्या करते हैं, वो हार्म करते हैं, इंटेंशनली हार्म करते हैं अटैकर का, और वो अच्छे प्लेयर्स को हार्म करके बाहर निकालना चाहते हैं. ओके, नो डाउट यू वांट टू विन, बट यहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है कि वेदर यू आर प्लेइंग विद द स्पोर्ट्समैनशिप
or whether you are playing with the gamemanship. So there is a big difference between the gamemanship and the sportsmanship, and that is why most of the corporate world and everywhere, every time you just say see, every time most of the corporate world industries, they are just giving the example of the sportsman. Why? वो उनका ये मानना होता है कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो बहुत लॉयल होते हैं, ट्रू होते हैं, और बहुत डेकोरेटिव नेचर और बहुत डिटरमिन्ड और बहुत ऑनेस्ट होते हैं. दैट्स व्हाई दे. तो अपर प्रॉब्लम क्या होती है जब स्पोर्ट्समैनशिप के साथ गेममैनशिप इंक्लूड हो जाती है. गेममैनशिप में क्या हो जाता है? गेममैनशिप क्या डिफरेंस क्या बड़ा माइन्यूट सा है. गेममैनशिप मींस होता है द टीम वांट्स टू विन बाय हुक बाय क्रुक. कैसे भी करके हमें जीतना है, उस कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है गेममैनशिप. तो ये नहीं है. अब ये इस मामले में वीक पड़ जाते हैं कि वो मारना नहीं जानते. ये मारना इज नॉट अ गुड थिंग. ये वो तभी आप आदमी अगर मारेगा, दैट मीन्स दैट प्लेयर इज नॉट एबल टू विन विद देयर एबिलिटीज. उसके पास एबिलिटी नहीं है, तभी वो हार्म करेगा. अगर वो एबिलिटीज है तो कभी हार्म नहीं करेगा. जो स्ट्रॉन्ग होगा वो कभी भी शॉर्टकट यूज नहीं करेगा. तो ये इसके लिए कभी नहीं करना चाहिए कि वो हम उसे हार्म करें. प्लेयर्स को हार्म नहीं करना चाहिए, और ये बिगनिंग से सिखाना चाहिए कि डोंट हार्म द अपोनेंट हेल्थ किसी भी कंडीशन में. वहीं से हमारा फेयर प्ले स्टार्ट. नाउ we are focusing next on the movements and principles. Basically movements and principles, डिफेंस एक्टिंग विद अ डिफेंसिव प्रेशर. अब आप कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, बट जस्ट ट्राई टू बेसिकली गिव सम प्रेशर ऑल्सो. प्रेशर इज इंपॉर्टेंट. आपको प्रेशर करना है, प्रेशराइज करना है. तो वो यहाँ पर इसको कुछ 4 फेजेस में डिवाइड किया है. सो लाइक दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल वेटिंग फॉर द अटैक. वेट करना चाहिए. अटैक का वेट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल reposition themselves and reorganize for the system. जो मैं अभी बात कर रहा था सिस्टम में ऑर्गेनाइज होने के लिए, एंड देन गेट बैक टू योर पोजीशन. तो ये फर्स्ट है. फर्स्ट फोकस, सबसे पहली काम ये होता है. दूसरा काम बाद में होगा, बाकी चीजें बाद में होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेक द बेसिक पोजीशन फर्स्ट, एंड देन आफ्टरवर्ड जस्ट try to organize to your designated intended system. जो भी आपका सिस्टम है उसमें आपको आना चाहिए. 6051 whatever the system you are adopting, वो उस पर लेना है. फिर then constraining opponent initiative बहुत इंपॉर्टेंट है. constraining means क्या होता है? restricting the opponent. constraint करना, just try to constrain the opponent initiative. restrict the opponent initiative, वो करना चाहिए. दैट इज इंपॉर्टेंट. ये है आपके पास जैसे रूल, ये कर सकते हैं. टू क्लोज से उसके पास बॉल जा रहा है, ट्रेवल करते हुए जा रहा है, आपने उसको ओपन स्पेस दिया हुआ है, वो पास ले रहा है, तो ये अवॉइड करना है. उसको क्लोज स्पेस देना है. टू डिनाई एनी थ्रेट टू द गोल बाय बॉल पोजीशन. प्लेयर आता है मैक्सिमम टाइम, स्पेशली बैक प्लेयर्स, और स्टैंडिंग शॉट और मे बी समटाइम्स जंप शूट हाई, आराम से शॉट मार के चला जाता है. व्हाई? मेरी पोजीशन इज नियर टू द 6 मीटर लाइन. यहाँ पर हमारी पोजीशन है, हम इससे आगे बाहर नहीं जाएंगे, नहीं निकलेंगे. तो प्रॉब्लम क्या होती है? दे आर नॉट टेकिंग अ स्टेप आउटसाइड द बेसिक पोजीशन. वो वहीं पर रिटेन रह जाते हैं, खड़े रह जाते हैं, और सामने से अपोनेंट स्टैंडिंग शॉट दैट इज SSB और SSWB, और वहां से बेसिकली वो जंप शूट हाई समटाइम और थ्रू शॉट्स बोलते हैं इनको. तो ये सारे थ्रू शॉट्स करके वो निकल जाता है. तो ये इंपॉर्टेंट है. तो उसको इनिशिएटिव रोकना है बाय टेकिंग द स्टेप और टैकल द अपोनेंट. टू क्लोज डाउन द स्पेस एंड टू क्रिएट न्यूमेरिकल एडवांटेज.
on the ball side. अब यहाँ पर क्या है, जो ओपन स्पेसेस क्रिएट हो रही हैं उसको अवॉइड करना है, ओपन स्पेस नहीं देना, जिससे कि क्या हो कि इफ द रन फ्री इज गोइंग ऑन, पोजीशन चेंज इज गोइंग ऑन, at that time just try to come in the numerical advantage. And how this thing is happen, numerical advantage कैसे हो सकता है, आप कैसे हो सकते हैं, if you're focusing more on the ball, अगर आपका फोकस बॉल की तरफ है, नॉट ऑन द प्लेयर, और अगर आपने प्लेयर की तरफ फोकस किया 100% ओपन स्पेस क्रिएट हो जाएगा, 100%। वो आपके सामने से एक रन फ्री करेगा, मे बी दूसरा प्लेयर पीछे से जाएगा, और at the same time the open space creates, position change occurs, and team is able to score by using the tactics position change. Simple position change करके स्कोर कर देंगे अगर if you are focusing more on the player not on the ball. तो यहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए. So again here some group tactics work. Give over, take over, we just say second is man to man, like that. We can apply these group tactics also to avoid this thing and focus more on the ball side and just try to create the numerical advantage. Now breaking attacking continuity, provoking mistakes, सबसे important होता है, just try to break the continuity of the attack. अगर आप continuity जो attack है उसको रोक देंगे तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा, जो उनका बिल्डअप फेज हो रहा होता है वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा अपोनेंट का. So just try stop in attack. Just try to provoke the mistakes by the opponent. Now how we can do this? The to pressure ball possession. सबसे पहले हमें प्रेशराइज करना चाहिए, जिसके पास बॉल है उसको प्रेशराइज करना चाहिए, और वो सिर्फ अपने जोन में या बेसिक पोजीशन पे रहने से नहीं होगा. टू सपोर्ट द प्रेशरिंग डिफेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मैक्सिमम टाइम क्या होता है, प्लेयर जस्ट सेइंग दिस इज माय प्लेयर एंड दिस इज माय जोन एंड आई एम फोकसिंग ओनली टू माय प्लेयर एंड ऑन टू माय पोजीशन, नॉट टू माय टीममेट. भाई तुम, ये तुम्हारा प्लेयर है, ये मेरा प्लेयर है, ये मेरा है, ये मेरे जोन है, मैं इस पे देखूंगा. अब यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है. तो नाउ दिस इज द ड्यूटी ऑफ द डिफेंडर टू सपोर्ट द टीममेट. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जिसके पास, जो बॉल पोजेसर के पास डिफेंस कर रहा है, वेदर द टीममेट, एडजेसेंट टीममेट जो उसके बगल में खड़ा है, एडजेसेंट टीममेट इज सपोर्टिंग टू द प्लेयर और नॉट, कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट, टू प्रिवेंट एंड टू क्लोज ऑफ फेवरेबल पासिंग लेन्स. अच्छा, जो उनकी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, फेवरेबल पासिंग लेन्स होती हैं, क्या उसको आप रोकने की कोशिश करते हैं? मैंने अभी बताया था, बहुत बार मैंने देखा है, मैं ये सारे आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हमारे प्लेयर्स भी करते हैं, बहुत करते हैं. सामने से बॉल चली जाती है और विंगर को देखते रहते हैं, दे आर लुकिंग टू द विंगर, और जब विंगर आएगा तो उसको पकड़ लेंगे, या तो 7 मीटर मिलेगा या प्रोग्रेसिव पनिशमेंट मिलेगा. आप सोच के देखिए, क्या उसको कभी लेन को, जो फेवरेबल लेन होती है, 4 मैक्सिमम टाइम 7 के लिए बॉल क्लियर करने की कोशिश करता है, अंटिल ही और शी हैविंग द स्पेस. अगर उसको स्पेस नहीं मिल रहा तब वो 7 के लिए बॉल क्लियर करेगा, या 2 को आपने वो क्लोज किया है कि वो इजीली कैसे पास दे देता है भाई, मुझे समझ में नहीं आता. अगर आप डायनेमिक नेचर है तो इजी पास तो जाएगा नहीं, इजी पास नहीं जाएगा. अल्टीमेटली प्लेयर इज अल्टीमेटली गुड इन द फेंट, so that the defending player also just coming to the player, or he or she having a different types of passing technique. ठीक है, अगर इस तरह का है तो कोई बात नहीं, अंडर उस लेवल पर है, पर इतना इजी पास कैसे चला जाता है सामने से. तो जस्ट ट्राई टू प्रिवेंट दोज इजी पासेस, फेवरेबल पासेस. देन अब क्या होता है, डिनाइंग स्कोरिंग इन स्पेस ऑफ ग्रेट वैल्यू.
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारा, मैंने, अगर आपको याद होगा, जो हम लोग काफी सेशन में बात कर रहे थे, जो वनरेबल, जो सेंटर साइड होता है, जस्ट ट्राई टू ब्लॉक दैट थिंग। जो हमारा सेंटर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रहा होता है। तो ये जो जोन होता है बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से स्कोरिंग के रेट हमें रोकने चाहिए। ये सबसे ज्यादा वनरेबल होता है, जो सबसे, इसे ग्रेट वैल्यू माना जाता है, क्योंकि यहाँ से स्कोरिंग चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ब्लॉकिंग एंड कॉन्स्ट्रेनिंग एनी शॉट अटेम्प्टिंग ऑन गोल, लाइक थ्रू शॉट। थ्रू शॉट्स को हमेशा रोकना है। दिस इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द डिफेंडर। देन द सेकेंड ड्यूटी स्टार्ट ऑफ द गोलकीपर। मना नहीं कर रहे, द ड्यूटी ऑफ द गोलकीपर इज नो डाउट। अब होता क्या है, डिफेंडर कहता है भाई तूने इतना लंबा गोल कैसे खा लिया, इतना दूर से मार दिया उसने, तू क्या कर रहा था? भाई आप क्या कर रहे थे बीच में खड़े होके? व्हाई डोंट यू ब्लॉक द बॉल? सारा गोलकीपर के ऊपर चढ़ जाते हैं उस समय। ओके, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट ड्यूटी, जस्ट ट्राई टू स्टॉप द थ्रू शॉट। थ्रू शॉट्स पर रोकना चाहिए। थ्रू शॉट्स इज द अल्टीमेटली। देन आफ्टरवर्ड दिस इज द कोऑपरेशन बिटवीन द टीम प्लेयर, डिफेंडर एंड द गोलकीपर। फिर ये अलग टॉपिक हो जाता है कि गोलकीपर की क्या पोजीशन है एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द डिफेंडर। तो वो एक कोऑपरेशन होता है, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन। तो उसमें एक अलग चीज होती है। तो वो क्या पोजीशन ले रहा है, लॉन्ग कॉर्नर, शॉर्ट कॉर्नर, लॉन्ग कॉर्नर, शॉर्ट कॉर्नर, हु इज टेकिंग लॉन्ग कॉर्नर, हु इज टेकिंग शॉर्ट कॉर्नर, गोलकीपर जस्ट कैचिंग और शॉर्ट कॉर्नर, डिफेंडर जस्ट चेकिंग द शॉर्ट कॉर्नर, व्हाट। नाउ दिस इज द अगेन द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। तो वो वहां पर पार्ट हो जाता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ट्राई टू ब्लॉक द थ्रो शॉट एंड देन आफ्टरवर्ड्स what happened, recovery is the most important thing and help is the most important thing. Now, without recovering the ball, how you can start the transition to the attack, and what happens most of the time when the bowler all of the players, but they don't know बॉल को पकड़ना है, कौन किसकी क्या ड्यूटी है, क्या रिकवरी फेज में है। तो ये ड्यूटी भी पता होना चाहिए। एंड जस्ट ट्राई टू हेल्प एंड बी कनेक्टेड, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अगर व्हाट हैपन समटाइम्स, ठीक है, कोई वन ऑन वन करके सिचुएशन करके निकल जाता है, तो क्या आप उसको हेल्प कर रहे हैं अपने टीममेट को? वेदर यू आर कनेक्टेड, क्या आपका कनेक्शन है आपस में सारे प्लेयर्स का? अगर हम बात करते हैं आउटसाइड डिफेंडर्स, हाफ डिफेंडर, फॉरवर्ड डिफेंडर, these three types of defenders are there, isn't it? ये तीन तरह के डिफेंडर्स होते हैं बेसिकली। तो इसको बोलते हैं हाफ डिफेंड, आउटसाइड डिफेंडर्स, हाफ डिफेंडर्स, ऑल्सो डिफेंडर। तो क्या गोलकीपर का कनेक्शन विद द टीम इज देयर? क्या गोलकीपर अपना ड्यूटी कर रहा है? क्योंकि गोलकीपर ऑल्सो हेल्प, गोलकीपर भी हेल्प करता है डिफेंस करने में, वो भी उनसे कनेक्ट रहता है, वो भी लूप होल्स देखता है इजीली। गोलकीपर कैन चेक द लूप होल्स, कहाँ गलती हो रही है। तो देयर मस्ट बी अ कनेक्शन बिटवीन द डिफेंडर्स ऑल्सो। So these are the principles, that is most important thing, and we must apply these principles to pressurize the opponent. Is it clear? आपको कुछ इसमें पूछना है तो पूछ सकते हैं, आगे चलें। Yes, sir. Okay. Now we move towards the different aspect, that is a configuration. So I just already told about you this thing. Teams are just adopting a different system so that they can easily
counter the attacking team or easily stops the attacking movements of the attacking team. तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ पर, ये बात हो रही है कि कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो टीम्स अडॉप्ट करती हैं अपने लेवल ऑफ प्ले पर, कुछ सिस्टम अप्लाई करती हैं, अडॉप्ट करती हैं जो उनको सूट करता है जिससे कि अटैकिंग टीम को वो रोक सकें. तो फॉर दैट अभी होता क्या है, दे आर बेसिकली यूजिंग डिफरेंट सिस्टम. अभी वो डिफरेंट सिस्टम यूज कर रही होती है, अलग अलग सिस्टम. तो मैंने अभी आपको बता दिया व्हाट आर द सिस्टम्स आर. तो बेसिकली सिस्टम्स में जो होती है, बात करते हैं तो पोजीशंस होती है, मूवमेंट्स की बात होती है, और बेसिक ड्यूटीज उनकी क्या होती हैं, मेन ड्यूटीज, एंड द कोऑपरेशन विद द टीम मेट. तो इससे एक पूरा सिस्टम रेडी होता है. तो अब ये डिपेंड किस पर करता है कि व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज जस्ट एडप्टेड बाय द टीम. वो डिपेंड करता है द लेवल ऑफ द प्लेयर्स. आपकी टीम का लेवल कैसा है, प्लेयर्स का लेवल क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं. तो बेसिकली देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ डिफेंसिव सिस्टम. नंबर 1 is a man to man, number 2 is zone defense, and number 3 is a combined defense. Under this man to man, अगर हम इसमें देखें मैन टू मैन में, तो बेसिकली दिस इज फुल कोर्ट, नंबर 1. सेकंड इज हाफ कोर्ट, दैट, एंड थर्ड वन इज इन द कन्फाइंड. एंड इन कन्फाइंड जोन, इन द ओन कोर्ट, ये अपने जोन पर होता है. अब ये डिपेंड करता है कि इन सिचुएशन में, किस सिचुएशन में कब करना है. तो ये काफी बड़ा टॉपिक है कि कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है, किस कंडीशंस में किया जाता है. तो ये अलग अलग, ये हम लोग उसको देखते हैं, पर ये डिपेंड करता है कि आपका लेवल ऑफ प्ले क्या है. अगर आप फुल कोर्ट मैन टू मैन डिफेंस करेंगे तो मोर फिजिकल फिटनेस इज रिक्वायर्ड. आपको फिजिकल फिटनेस बहुत हाई होना चाहिए, तभी आप फुल कोर्ट मैन टू मैन कर सकते हैं. तो इसे हम टैक्टिकली यूज करते हैं. समटाइम बिटवीन द मैच, स्टार्टिंग ऑफ द मैच, ड्यूरिंग द एंड ऑफ द मैच, हम कंडीशंस को देखते हुए हम इसे टैक्टिकली यूज करते हैं. नाउ द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम इज जोन डिफेंस, और जो सबसे है इट इज बेसिकली व्हाट वी जस्ट कॉल 6-0 defense. It is basically we just say mother and father of all the defensive system. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है 6-0 डिफेंस. इसका नेचर बेसिकली शैलो होता है. इसमें क्या होता है, कोऑपरेशन और जो कोऑर्डिनेशन होता है बहुत इजीली मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि डिस्टेंस इज वेरी लेस बिटवीन द टीममेट्स. डिस्टेंस ज्यादा नहीं होता, ओनली 1.5 मीटर either side, 0.5, 1. तो थोड़ा एडवांस हो जाता है जब हमारे सामने 2 बैक प्लेयर्स बहुत अच्छे होते हैं. उन कंडीशंस में वी अप्लाई द 4-2 सिस्टम. 5-1 is again a popular system just to avoid the playmaker. प्लेमेकर्स को जो गेम होता है उसको अवॉइड करने के लिए, जो कॉम्बिनेशन होता है पीपी को रोकने के लिए. तो दीज आर सम टैक्टिकल सिचुएशन. हमें अपनी टीम को लेवल को देखते हुए, अपोनेंट के प्ले को देखते हुए वी कैन अडॉप्ट द सिस्टम. नाउ वंस अगेन दिस इज 3-3, अगेन अ वेरी ऑफेंसिव टाइप ऑफ डिफेंसिव सिस्टम. हाई लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस रिक्वायर्ड. बहुत जरूरी है फिजिकल फिटनेस होना, क्योंकि बहुत एरिया बढ़ जाता है एक प्लेयर के लिए. लॉट ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इज नीडेड, तभी जाके ये कर सकते हैं. एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जस्ट टीम्स आर जस्ट ट्राइंग टू अडॉप्ट इन द इंटरनेशनल लेवल. और ये तभी कर सकते हैं व्हेन द टीम हैविंग अ 7 to 8 or 10 years ऑफ एक्सपीरियंस. अगर उनके पास इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस है, देन दे कैन अडॉप्ट 3-2-1. इट इज highly recommended when the team having a good physical fitness level along with good coordination and cooperation, having about 7 to 10 years of experience of the same player.
अगर वो सेम प्लेयर्स हैं तभी ये 3-2-1 करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही वर्सेटाइल डिफेंस होता है और हाईली ऑफेंसिव डिफेंस, इसमें बहुत जोन्स काफी बड़े हो जाते हैं टू कवर. Then the combined defense, if the team having a one good player in the opponent team, and team just try to stop that particular player, then team start using this 5-0 plus 1. So 5 players plays on their zone near 6 meters, and one player just mark that particular dangerous player or opponent team in man-to-man situation. Marking, you know, marking, just guarding the player, just like a shadow, बिल्कुल शैडो के जैसे उसके साथ रहता है. तो इसको बेसिकली बोलते हैं 5-0+1. तो अगर सामने एक बहुत अच्छा उसको मार्क करना है, गार्ड करना है अपोनेंट के पास जाके, तब उस कंडीशन में हम लोग इसे 5-0+1 कहते हैं. सेकेंड वन इज 4-0+2. अब अपोनेंट में दो बहुत डेंजरस प्लेयर हैं, मे बी लेफ्ट बैक, मे बी सेंटर बैक, मे बी राइट बैक, एनी टू प्लेयर्स मोस्ट डेंजरस, और टीम जस्ट ट्राई टू स्टॉप दोस टू प्लेयर्स, देन दे अडॉप्ट दिस 4-0+2. उस कंडीशन में 4-0+2 यूज करते हैं. 4 players are playing on their zone and 2 players are playing to just near to those particular players. जो भी particular players दिए हैं जिनको तो ये देखिए, ये हमेशा नहीं किया जा सकता है, ये समझिएगा. ये 4-0+2 5, ये डिपेंड करता है, टैक्टिकल सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपकी टीम के लेवल पर डिपेंड करता है. तो ये चीज है. तो ये बेसिकली ये सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है और ये सारे यूज किए जाते हैं. अभी बेसिकली अब एक और हाई लेवल गेम इंटेंसिटी चल रहा है, लास्ट मिनट है, लास्ट 5 मिनट्स है, आपको गोल स्कोर का कुछ एवरेज करना चाहते हैं या इंक्लूड करना चाहते हैं, या मतलब यू जस्ट ट्राई टू प्रेशराइज द अपोनेंट टीम इन एनी हाउ कंडीशन, देन यू अप्लाई दिस 1+0 5. तो इसमें क्या होता है, 5 आर जस्ट टेकिंग मैन टू मैन एंड 1 जस्ट स्टैंडिंग नियर टू द 6 मीटर लाइन. तो ये बड़ा एग्रेसिव डिफेंस होता है, लाइक मैन टू मैन होता है, पर जिसमें एक प्लेयर सिर्फ जो रहता है वो 6 मीटर लाइन के पास रहता है. इन केस इफ कोई प्लेयर बीट करके आ जाता है, इन दैट कंडीशन दिस प्लेयर एक्टिवेट, ये उस कंडीशन में एक्टिवेट हो जाता है, या उस पीपी को एक्टिवेट के साथ ये रोकने की कोशिश करता है. तो 5 ये बड़ा डेंजरस सिचुएशन होती है. तो ये तभी यूज करना चाहिए जब आपके पास नो अदर ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन नहीं है, देन यू कैन अप्लाई. और इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होना जरूरी है. 2+0 4 सेम, 4 मैन टू मैन एंड 2 नियर टू द जोन, नियर टू द 6 मीटर लाइन. तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है कंबाइंड डिफेंस के जो यूज किए जाते हैं. पर ये सारे सिस्टम हम तभी अप्लाई कर सकते हैं when they having a good training of the system. उनके पास अच्छे लेवल की ये ट्रेनिंग होना जरूरी है, अनिवार्य है. इट इज मैंडेटरी, देन वी कैन अप्लाई. और एल्स फॉर द बिगिनर्स, हम जो नए बच्चे होते हैं, बिल्कुल जो 7 8 10 ईयर्स 9 ईयर्स हैं, उनको आप मैन टू मैन खेलने दीजिए, कोई इशू नहीं है. मैन टू मैन आप खेलने को दे सकते हैं. जो मैन टू मैन है उसमें आप जिसे फुल कोर्ट बोलते हैं वो खेल सकते हैं, जो नए बिगनर्स के लिए, क्योंकि बिगनर्स को जस्ट ट्राई टू अवॉइड प्लेइंग इन द सिस्टम. तो हमें बिगनर्स को अवॉइड करना चाहिए. और नहीं तो वंडरफुल इज 6-0 सबसे अच्छा माना जाता है. दैट इज इजी टू इनकॉर्पोरेट और आसानी से सीखा जाता है. और मे बी 5-1, क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं है. बाकी सारे सिस्टम में इट्स रिक्वायर्ड अ टाइम, सब में बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए होता है. अनटिल एंड अनलेस यू हैव एकेडमी टाइप ऑफ थिंग. अगर आपके पास एकेडमीज हैं और लाइक, तब ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं. वंडरफुली 3-2-1 3-3-4-2 ये सारी चीजें यूज की जा सकती हैं. नाउ न्यू ट्रेंड इन डिफेंस. अब जो अभी बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे
then ball oriented defense. This is most important, not the man oriented defense. Maximum होता क्या है, we are teaching our students man oriented defense, not the ball oriented defense. Just try to focus on the ball first. Then next, very active defensive game. We must focus on the active defense game. अभी तक क्या होता है कि ज्यादातर टीम्स just focusing on the attack. They are not focusing on the defense. तो इस पर भी एक्टिव डिफेंसिव गेम होना चाहिए, यानी डायनामिक नेचर होना चाहिए. आपका जो गेम का जो नेचर है, इट मस्ट बी डायनामिक. मैं अभी आपको इसका बाद में इसका वीडियो दिखाऊंगा कैसे वो डायनेमिक होता है. ये नहीं कि वो एक जगह स्टेशनरी खड़े हैं. इनका नेचर हमेशा एजाइल एंड डायनेमिक होना चाहिए और क्विक और एक्टिव होना चाहिए. उनको पहले से पता होना चाहिए कि हमें अब इस मोमेंट में क्या एक्शन करना है, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एंटिसिपेशन. एंटिसिपेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर डिफेंसिव प्लेयर. क्या एंटिसिपेट कर रहे हो? बॉल पासिंग में तभी इंटरसेप्शन हो सकते हैं व्हेन द प्लेयर हैविंग एंटिसिपेशन एबिलिटी. देन बेसिक डिफेंस सिस्टम्स एंड इट वेरियस ऑल्टरनेटिव. सारे प्लेयर्स को पता होना चाहिए हाउ टू प्ले डिफरेंट डिफेंसिव सिस्टम्स एंड देयर वेरियस ऑल्टरनेटिव. उनके ऑल्टरनेटिव्स ये क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि इन बिटवीन सम टाइम we can change to 5-1, we can change to our team to 4-2, like that. So how we can apply this flexibility? When our team knows how to play in different situation, in different systems. अब 4-2 पता नहीं है प्लेयर्स को खेलना, 5-3-3 पता नहीं है, पर आपने बोला 3-3 खेलने लगो. How it is possible? जब उनको पता ही नहीं है. तो उसके लिए तभी है कि when they are trained according to different systems. Great flexibility with individual freedom of players. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फ्लेक्सिबिलिटी तभी आएगी, ओपन प्ले तभी होगा जब they know the different alternative of defensive system. They having know about the each and every basic position, basic movement of that particular system. Along with that, they also know the main duty of that basic position of that particular system and how to cooperate his or her teammate. कि बेसिक पोजीशन क्या होती है, बेसिक मूवमेंट क्या होता है, किस सिस्टम में कैसे खेला जाता है, उस सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, उस बेसिक पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या क्या ड्यूटीज होती हैं और कैसे कोऑपरेट किया जाता है इन 3-3. भाई 3-3 डिफेंसिव सिस्टम में कोऑपरेशन इज टोटली डिफरेंट और in 6-0 इस कोऑपरेशन इज टोटली डिफरेंट. बहुत अलग हो जाता है दोनों में, बिल्कुल अलग हो जाएगा. अगर आप यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ, इट इज विजिबल, आपको दिख रहा है ये व्हाइट बोर्ड? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. देखिए मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, ये छोटा सा यहाँ पर आपको एक डिफेंस है, ये 6-0 डिफेंस है. तो ये जो बेसिकली आप ये देख रहे हैं, ये 6-0 डिफेंस है. अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें डिस्टेंस ज्यादा नहीं है बिटवीन द प्लेयर, तो इसमें कोऑपरेशन और जो ड्यूटीज होती हैं वो इजीली कैरी आउट हो जाती हैं. पर अगर हम इसमें सेम, अगर यहां पर हम देखेंगे इन 3-3, यहां पर अगर आप देखेंगे
अब ये देखिए यहाँ पर एक एक प्लेयर का जो बेसिकली इनकी बेसिक पोजीशन देखेंगे वो उनका कितना ज्यादा हो गया है एज कंपेयर टू 6-0। इनकी ड्यूटीज जो है वो ज्यादा बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो इनकी बेसिक ड्यूटीज है वो चेंज हो जाएंगी। जो मेन ड्यूटीज इट चेंज when they just transform to 6-0 to 3-3. That is why I am saying flexibility is only possible when they are able to understand different systems. तभी वो इसको कर सकते हैं। Now अभी इसमें basically नया जो ट्रेंड चल रहा है, it is like limited the substitution because now a game becoming very fast. Every team is playing very fast. Just try to limit the substitution, and how it is possible only when players are more complete in all game phases. उनको पता है how to attack and how to defend. Then we can limit the substitution. Now, the most important thing, how we teach the defense to the beginners. So here the first of all we must understand the pedagogical process. देखिए मैं pedagogical बार बार बोल रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिए। pedagogical means होता है art of teaching. एक अच्छा कोच, एक अच्छा टीचर तभी बन सकता है जब उसके पास वो आर्ट है। And when the teacher uses the art in artistic manner and prove with the help of the scientific thing, then it become a science. So basically our field is both art and science. हमें artistic manner भी use करना चाहिए in teaching में and scientific method also. Scientific method use नहीं करेंगे तब तक we can't get the result. So it is a basically a pedagogy. उन्होंने देखा और उन्होंने वहां अप्लाई कर दिया। दे अप्लाइड द सिस्टम। बहुत अच्छी बात है, आप 3-3 अप्लाई कर दिया। क्या आपकी टीम लेवल की है? क्या आपकी टीम का वो लेवल है? क्या वो उस लेवल पर है? तो हमें ये देखना है कि लर्नर्स एबिलिटी, वी फर्स्ट अंडरस्टैंड द लर्नर्स एबिलिटी, स्टूडेंट्स एबिलिटी, प्लेयर्स एबिलिटी। जो हमारे बिगनर्स हैं उनकी एबिलिटीज को देखते हुए वी हैव टू स्टार्ट टीचिंग द थिंग्स। अब आफ्टर एडॉप्टिंग ऑल दीज सिस्टम, जब हम लोग इस बात पर आ जाते हैं तो हमें इस पर फोकस करना चाहिए, what methodological aspects we should take. methodological aspects क्या होने चाहिए, क्या methods यूज करने चाहिए for teaching the दो systems, क्या हम करेक्ट टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। तो अगर हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे जो मैंने अभी जो 3-4 पॉइंट डिस्कस किए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप इनको जरूर फोकस कीजिए व्हेन यू आर गिविंग अ ट्रेनिंग टू द बिगनर। ये तभी हमें सूट करता है, ना कि ये देख लिया कि अपोनेंट क्या है, पहले हमें अपोनेंट को रोकना है, फिर हमारे पास लर्नर्स की एबिलिटीज को देखना है, फिर हमें ये देखना है कि जो हमारे जो बेसिकली प्लेयर्स का जो लेवल है वो कैसा है, और फिर हम क्या मेथोडोलॉजी यूज करें जिससे ये सारी चीजें वो सीख सकते हैं। क्योंकि सडनली तो आप जंप नहीं करा सकते ना उनको 3-3 के लिए। 3-3 आप सिखा सकते हैं कि क्या मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, क्या मेथड यूज करेंगे फॉर टीचिंग द 3-3 सिस्टम। किसने मना किया? तो वो आपके लिए तभी अप्लाई होगा जब कुछ कंडीशन करती हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ एकेडमीज हैं, जहाँ प्लेयर्स कंटिन्यू रहते हैं, वहां पर तो यू कैन अप्लाई ऑल दिस थिंग। यू कैन टीच देम 3-3, you can teach them 4-2, you can teach them 6-0, you can teach them 3-2-1 also, combined defense, anything. Because why?
because they're having a more time. But problem arises when we are teaching in the schools, in the colleges, in the universities level for the beginner. अब क्या होता है, बच्चा आता है आपके पास मुश्किल से 1 घंटे के लिए, और कभी आता है कभी अब ये पॉइंट ये सबके लिए एप्लीकेबल अलग अलग हो जाएंगे, जो वो पॉइंट्स हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल अलग अलग हो रहे हैं। जहाँ एकेडमीज हैं वहाँ एप्लीकेबिलिटी इज डिफरेंट, जहाँ पर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ पर क्लब्स चल रहे हैं, जहाँ कैंप्स चलते हैं, तो वहाँ पर एप्लीकेबिलिटी इज डिफरेंट। तो इस पर हमें देखना है कि हमें क्या सूट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू बिगिन आवर ट्रेनिंग टू द बेसिकली टू द बिगनर। इसमें बेसिकली हम लोग बात यही करते हैं कि फुल कोड प्रेशर डिफेंस यूज करते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है। ऑलवेज स्टार्ट विद द फुल कोड प्रेशर डिफेंस सिस्टम, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल शुरू कर सकते हैं विद इन द रूल्स। फिर हम वी कैन फोकस ऑन द हाफ कोड प्रेशर डिफेंस। जब बच्चे सीख जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, बिगनर्स के बाद थोड़ा थोड़े वो मैच्योर हो जाते हैं, देन वी कैन गिव द एंड आफ्टरवर्ड्स इंटरमीडिएट लेवल वी कैन जस्ट गिव अ प्रेशरिंग जोन डिफेंस। फिर हम वी कैन फोकस ऑन द प्रेशरिंग जोन डिफेंस पर हम फोकस कर सकते हैं, पर लेटर स्टेज में। दिस इज द स्टेजेस एक्चुअली। अब प्रॉब्लम क्या होगी, आपके पास नए बच्चे आए, बिल्कुल बिगिनर आए, और आपने शुरू कर दिया कि चलो 6-0 पे स्टार्ट करो, खेलना स्टार्ट करो 6-0। वो कभी इंजॉय नहीं करेंगे, ये क्या एक जगह खड़े होकर खेलना है, उनको पता ही नहीं है कि वो पहले उन द अल्टीमेट एम इज द एंजॉयमेंट ऑफ द मिनी हैंडबॉल बेसिकली फॉर द बिगिनर्स। फिर देन वी कैन फोकस ऑन द अदर आस्पेक्ट, ग्रेजुअली वी कैन इंक्रीज द लेवल, वी ग्रेजुअली इंक्रीज इट, हमें धीरे धीरे इंक्रीज करना। नाउ हाउ वी कैन गिव द ट्रेनिंग, अगर आप देखेंगे तो हम किस तरीके से हम ट्रेनिंग देते हैं। ये कुछ ट्रेनिंग वीडियोस हैं, ये देखिए वर्सेटाइल, ये मेन फोकस स्टेपिंग। डिफेंस ट्रेनिंग इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द स्टेपिंग, फुटवर्क। फुटवर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप देखिए सारा फोकस फुटवर्क and then focus on the physical fitness. This video is clear to you? Yes, sir. ये देखिए, अब यहां देखिए टीम कोऑपरेशन स्टार्ट। नाउ टीम कोऑपरेशन स्टार्ट, फुटवर्क, फिजिकल फिटनेस एंड देन टीम कोऑपरेशन। नाउ डायनेमिज्म, जो मैं बोल रहा था, डायनेमिक नेचर, डिफेंस डायनेमिक नेचर स्टार्ट। हमेशा डिफेंस को डायनेमिक होना चाहिए, नॉट स्टेशनरी। देखिए यहां हो रहा है गिव ओवर टेक ओवर, ये फॉलो अप चल रहा था, ये कैसे उसको कोऑर्डिनेट करना विद द सेकंड वीडियो। देखिए विंग को डिफेंस करने के लिए, हाउ टू डिफेंस द विंग, 1:2 सिचुएशन, दिस इज 1:2 सिचुएशन। आप स्मॉल ग्रुप्स में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऑलवेज रिक्वायर्ड 40x20 मीटर एरिया। ये अर्ली स्टेज में ट्रेनिंग स्टार्ट होना चाहिए, बिगनिंग। सिचुएशन 2-3,
2 defensive players, 3 attacking players. देखिए अभी जो भी हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे थे वो सारा चीज वही चल रहा है. फुटवर्क, मूवमेंट, बेसिक पोजीशन, मेन ड्यूटी, टीम कोऑपरेशन, 1 वर्सेस 1 पिवट. पिवट को कैसे डिफेंस करना है, हाउ टू डिफेंड द पिवट प्लेयर. ये देखिए बॉल इंटरसेप्शन, जो बार बार बोल रहे बॉल इंटरसेप्शन इज मस्ट, नॉट द प्लेयर. स्मॉल ग्रुप ट्रेनिंग, 3 वर्सेस 3. अब बेसिकली रियल एनवायरनमेंट आफ्टर दिस, अब ये देखिए कि 6-0 बेसिकली डिफेंस जब हो रहा है, जोन डिफेंस. तो जो बार बार मैं बोल रहा था, बेसिक पोजीशन एंड डायनेमिज्म. डायनेमिज्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये प्लेयर्स का मूवमेंट देखिए, वापस रिटर्न बैक टू देयर ओन पोजीशन. Okay, now special acknowledgement to International Handball Federation, a special credit to IHF. Thank you very much for patient hearing. Now, session is open for Q&A.